Imagine your everyday life, your home, your family and friends, your place of work, memories such as celebration of birthdays or the impromptu dinners which collectively offers you a sense of identity. But suddenly finding yourself uprooted, having all these taken away from you with no certainty of ever gaining back the normalcy. Where will I go next? Who will I turn to? Will I know the language? How will I finance myself? What kind of future will I be able to give to my family members? Are some of the questions that come to the mind. Having qualifications and skills, but simply not the right to work. This causes a large amount of frustration as a family needs to be supported in the new country. It is like being a migrant, but without being enabled to start a new life. This, coupled with the burden of the past, persecution, and uncertainty of what the future brings, weigh you down. A year ago, I set out from Singapore to explore these questions, interacting with refugees in transit countries, Malaysia and Indonesia, and refugee camps in Bangladesh, as they wait to be accepted into destination countries such as Australia or New Zealand. Close to 1 million displaced Rohingya refugees from Myanmar have fled to refugee camps such as Kutupalong and Balukhali at Cox's Bazar, Bangladesh. They have been rendered stateless and displaced since 1982 through the decades of conflict. Here, they work creatively through the aid given to them to sustain their needs in hopes of gaining their rights back one day. In Kuala Lumpur, we met Rohingya refugees who could afford travel there, living in fear of authorities. We found them striving for a better life in hopes of supporting their family members back home. In Bogor, I met Hazara refugees who have been targeted by sectarian extremists for many years due to their minority Shia faith in Sunni majority Afghanistan and Pakistan. In Pakistan, the Hazara community live confined to two Hazara districts, Mariabad and Hazara town, in two parts of Quetta, outside of which their safety is at risk. Through this documentary, we want to convey how people have adapted and found ways to keep on going despite being stripped of their rights. Their vulnerability with each other has led to making each other's sorrow and gifts community knowledge. The process of articulating one's thoughts and putting it out there in the community allows others to appreciate and even accept what is happening. This allows space for community-based solutions such as karate schools in Indonesia, refugee learning centers and soccer teams in Malaysia, and small shops in Bangladesh despite the restrictions. मेरा नाम अभिषेक है और ये मेरे दोस्त हैं और ये इंटरव्यू इसलिए हो रहा है ताकि लोग जो सिंगापुर में रहते हैं वो आपकी सिचुएशन के बारे में और जान सकें और जो मदद करनी चाहें वो कर सकें। इसके लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत थी। चलो भाई। ओके, तो शुरू करने के लिए आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि आप कौन हैं, आपकी फैमिली में कौन रहता है? और नाम होगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। आना रबी अहमद, আমি বর্মার। তা তো ফ্যামিলির মাঝে মানুষ আছে 7 জন। তো আমরা বর্মার 7 জন বেগুন ফুরসা ছিলাম। তো এই বর্মার মাঝে যখন আর দেশের মাঝে আর সালার মাঝে যখন মারামারি ফজাত বর্মার গভর্নমেন্টে যখন
আসরতন মাঝে ধরে যাই আর তার মা বউ মারা শুরু দিয়েছে গুলি মারা শুরু দিয়েছে সারেটা হতো আর নেলিয়ারে হন্য হইকে দি দাই গিয়ে ফাত্তান মশিল তো আরেকখান ফারাম মাঝে দরিয়ার হাসা ফারাম মাঝে আয়ার আছে আর 5 জন দল হই ভেজি আর 2 জন দল হই নেওয়া পারি তো ফুয়াক গো নানির মধ্যে তাই গেল গই আর গো মুর মধ্যে তাই গেল গই আর তো নিজের আর ফ্যামিলির তো আর 5 জন দল হই হয়েছিলাম তারা ফুয়া দিন গো নানির মধ্যে আসে ওগো আছে মুর মধ্যে আসিন সেই নহন আর কইলা হই নেওয়া পারি পিছুত তো এটা বাংলাদেশের মাঝে আয় আরে এটার আসিল দেশা উঠিয়া আর মাঝে আছে এটা কুতুহালং দিয়ে আসছিলাম আয় আরে 7 দিন বাদে তারাই আসছিল রে খবর পাই আরে একজন দলই তো আর আবেশের মাঝে আর ফারার মানুষ তো হন গুলি মারের বুম মারের এই তুনুর মাঝে আছে লঞ্চা মার দিয়ে তুনুর মাঝে হন হইকে দুমুর দেখেন যা টাইমের মাঝে আছে আর ডাকর আর ঘরের বাজাইয়া মাইয়া ভুয়া দুয়ার গাছ মাঝে খুঁজে দিয়ে দিলা আছে নিজের সুখের দেখিয়া এটা আছে আর যে তারিখ মাসে আউটিয়া তো নির্যাতন হয় অশান্তি বাইরে যখন ভাড়াই আউটিয়ার মাঝে তো হেন তো এটা কুতুহালক মানুষ আছে আগেও খবর আছে রেফিউজি কল এটা কি আইয়ের দে খবর আছে আর আমার এটা দেশি তাই আয়ার দে আমার ই মুরাশিল মুরাদ মাঝে আয়ার যে জিয়ত পাই আমাদের আছে তার ভালদা ভাজি দিয়ে আর আসছিলাম ফিসুর তো আছে গাছ বা শসা মজা হয় আর বাসা করে করে থাকি তারপরে এরপরে ইয়ার পরে আয়ার রাশন মাতি ওই সময় দিদি আর দূর মাঝে 22 গাছ দিদি আর কত পানি মাঝি মানে যে জায়গা থাকিলা দূর মাছ এই জায়গার মধ্যে মানে গাছটা ছাড়িয়ে থাকতে ধরি গাছ না জল আসছিল দিন জল আসছিল মোরা Organizations such as UNHCR, Save the Children, World Food Programme, among many others, give relief to facilitate the resettlement of refugees. Maji, who is the chief of a group of households, helps coordinate the aid distribution to 100 or so families. Work remains scarce in the camps, and people find different ways to make ends meet. He has a small shop and betel leaves. This shop idea कहाँ से आया? Tell me more about the shop. Don से गरीब है ना माने क्या नहीं चाहिए मतलब मुझे डायरेक्ट don दिया जब हम लाशुरी जब तो मात्र era आरा होने मुझे बना सोई कैन ही बात है तो जब हम आरा तो मास्टर है हाई वाला खिलाएंगे तो लगे तो हम बोलते हैं आरा तो जब तो सुना सुना शील पहले तो ये सुना तो नहीं जैसे रहा है जब बना बोलता कि हाले दिन दुनिया हानि करी Refugees use the best of their efforts to keep their shops running or be part of the small-scale local economy. This is an ambition of creating capacity for themselves to have the freedom, however small, of choice. আর পছন্দ হানা হইলে তোর আর বহমাত আগে জিনি মাছ খাইতাম তিন হলে না খাই चिंजा मास আর তত্ত্বদা মাছ খাইতাম হেডে তত্ত্বদা মানে হন সাইরে দরিয়া তু আর এখন এটা আর অন মন মজি মাছি বেড়ে না খাই তার পছন্দ তো আর হাইনি বাড়ি তোলে গ্যাস মাছ তাই বরফ দিয়ে মাছ কিন খাই आज क्या बना? अच्छा अच्छा की बनाया আজ যাবো হাইলা বগিয়া মাছ নিলাম বুঝা মাছ मास फिश मेरे लिए बना. अगे इधर बात दो दुआ दुआ हाजो आपके लिए खा सकते हैं खा सकते आपको ये फिश करी क्यों पसंद है इतनी? जरा बता सकेंगे? या कोई लोकल फूड है या फिश माने तो मासी बा इनमें का बारा लगा होते इनमें का भी बारा लगे मासी बा মাছ আর কোন ভালো লাগে অন্য মাছ তো রাতে ব্যথা ভালো লাগে দাও খেড়া হাজে খেড়া নাই खेला नहीं খেড়া না তাকে ইয়ান আল্লাহ বলে আপনি खेला ही नहीं दिखते বেশি ভালো লাগে बाशो बम्बू हो bone they Bone. prefer boneless fish बर्मा में भी ये खाते हैं? ভালো ইও নেই মিলতো नहीं मिलता. ये ज़्यादा अच्छा है. इवा मासी बा बाला बिसी नहीं के बर्मा हादी बा बाला बिसी বরং ভালো
बर्मा के नहीं, बर्मा वाला अच्छा था। बर्मा से ज़्यादा क्यों अच्छा है इस फिश से? ये फ्रेश फिश है इसलिए बर्मार माছ किल्ले वाला है এখন তত দা और दरबार का कलर এখন জিয়াতা फ्रेश फ्रेश फिश कौन सी फिश ज़्यादा ताज़ा होती है? बर्मा बर्मा की ज़्यादा। ओह, বাবা বুদা আছে দরিয়া আছে তো মাছ চাইও নিতে तो পারে हिंदी होता है हिंदी हाँ नहीं कर उनके लिए फ्रेशनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है Yeah. बोनलेस से। फ्रेशनेस इज हिंदी होता रहा ना To me, the refugees' life was captivated by the relationship that they had with the aid agencies. There was a sudden helplessness to the situation, with their life becoming a reaction to their environment, rather than taking a self-directed course. As I met refugees in Malaysia, their narrative of accomplishment and response became a lot stronger in their search of a better life. जब मैं बर्मा में था तो ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं था। जब मैं जो बैटल हुआ था वो मेरे टाइम पे नहीं था। जैसे कि वो 12 मई में हो गया था, 12 मई में हुआ था। 12 जनवरी से लेकर मैं यहाँ मलेशिया में हूँ। जब मैं स्कूल छोड़ गया था, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो छोड़ना पड़ा। तो मैंने कहा कुछ कमा के देखता हूँ। जैसे कि मेरे भाई भी सपोर्ट करता था कि तुम यहाँ आ जाओ, वहाँ गांव में क्या कर रहे हो, कुछ काम भी नहीं है। तो जो मैं भेज रहा हूँ उसी को खर्च कर करके कैसे चल सकते हो तुमको भी एक दिन तुम्हारे पेरेंट्स का रिस्पॉन्स लेना है, सपोर्ट करना है अपने फैमिली को। तो अगर मैं यहाँ कुछ हो गया तो क्या होगा? तो तुम वहाँ बैठ के क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। तो तुम ये बेटर होगा कि तुम इधर आ जाओ। अगर मैं कुछ हो गया तो तुम संभाल सकते हो, अगर तुम कुछ हो गया तो मैं संभाल सकता हूँ। तो ऐसे डिस्कस करने के बाद मैं यहाँ आ गया। ज़्यादातर यहाँ के जो है लोग ये काम क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग अगर इस एरिया की बात करो तो आप साइन बोर्ड ही देखा जाएगा। जैसे कि साइन बोर्ड को क्या करते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं। जैसे कि बड़ा बड़ा साइन बोर्ड है, ये काफ़ी डेंजरस है लेकिन करना पड़ता है पेट के लिए। तो फैमिली को जो सपोर्ट करना है। डेंजरस कैसे है? डेंजरस है जो ऊंचाई में जाकर क्लाइम करना पड़ता है। वहाँ जाके जैसे कुछ चीज़ों को उठाना पड़ता है वो पुल करके। तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि आप या थोड़ा डेंजरस होता है तो आपको सेफ्टी बेल्ट लगता है, सेफ्टी शूज़ लगेगा। तो कुछ लोग कुछ टाइम में जो बीते हुए टाइम में कुछ लोग मर भी गए थे उस काम में अभी गिर के। रिसेंटली हुआ था ये सब, तो उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट आया? तो इम्प्रूवमेंट तो वो बॉस पहले जो वो कुछ हो गया था वो लोग सेफ्टी को इतना कैरी नहीं करते थे। तो अभी बॉस ने थोड़ा टाइट कर लिया। जैसे कि तुम लोगों को सेफ्टी बेल्ट यूज़ करना है, सेफ्टी शूज़ यूज़ करना है। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया इसके बिना तो मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं लूँगा। तो तुम लोगों को ये करना है। तो थोड़ा टाइट हो गया, सिक्योरिटी थोड़ा टाइट हो गया। तो अभी तो सब अच्छा ही चल रहा है। As they face the challenges of living as a refugee, solidarity becomes their strength in a foreign land. जैसे कि अभी मुझे कुछ चाहिए, जैसे कि पैसे चाहिए फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो इस महीने में मैं बीमार हो गया था। तो जब बीमार हो गया तो काम तो नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे फैमिली को सपोर्ट भी करना चाहिए। तो ये सबके साथ शेयर करते हैं और सब मिल के जितना हो सके उसको मदद करते हैं। तो टाइम तो इधर बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे कि सब एक फैमिली रह रहा है इधर। तो लेकिन प्रॉब्लम वही है कि देश का प्रॉब्लम है। जैसे कि कोई फैमिली में सिर्फ एक ही लोग होता है, जैसे कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो 2-3 लोग कमाने वाला नहीं होते। तो अगर वो भी यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया तो फैमिली तो बहुत डिफरेंट में चले जाते हैं करना। और आप लोगों को कैसे फील होता है जब कोई रिप्लाई नहीं करता और कुछ समझ में नहीं आता कि अगला स्टेप क्या होगा? वो तो बहुत बुरा होता है। तो हाँ, पता नहीं कब मिलेगा ये कार्ड, पता नहीं कब कुछ कर सकूँगा, कब काम पे लग सकूँगा। ऐसे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ही है जो कार्ड की वजह से काम छोड़ दिया था। अगर काम पे जाते वक्त कुछ पुलिस अगर आपको देख लिया तो ज़रूर पूछ लेता है। जैसे कि कहाँ के हो, काम कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। जब हम लोग कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो अपना वो IC दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, ये कह रहे हैं। जब
हम लोग यूएनएचसीआर कार्ड निकाल के देते हैं तो ये वो लोग का जवाब यही होता है हमेशा कि इस कार्ड के साथ तुम काम नहीं कर सकते, तो एज ए रिफ्यूजी तुम सिर्फ यहाँ रह सकते हो। तो कुछ पुलिस वाले ऐसे भी कह देते हैं कि तुम लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है क्या, तुम लोग तो रिफ्यूजी हो, यूएनएचसीआर से कुछ तनख्वाह खा के भी तुम लोग बाहर में काम कर रहे हो। तो हम लोगों को तो कोई तनख्वाह नहीं मिलता, वो हम जानते हैं, लेकिन उन लोगों को तो नहीं पता। तो जब अगर दूसरी टाइम की बात करूँ तो जब पुलिस पूछता है कि क्या करते हो, तो काम कर रहा हूँ, ये जब हम लोग काम करते हैं ये बोलते हैं, तो वो लोग तो ये कह देते हैं कि इस कार्ड के साथ काम नहीं कर सकता। उसको मन में रखते हुए कह रहे हैं कि मैं काम नहीं करता हूँ। जब हम लोग ऐसे जवाब देते हैं तो पुलिस वाला भी फिर ऐसे जवाब देते हैं जैसे कि अगर काम नहीं कर सकते तो अपने आप को सर्वाइव कैसे करते हो, पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो उन कुछ प्रॉब्लम्स का हल क्या होता है, जैसे कि निकलने के लिए तो मैंने एक जवाब सोच लिया था। जैसे कि जब किसी पुलिस वाला ने मुझे आकर पूछे काम क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, तो मेरे पास तो यूएन कार्ड है, तो मुझे कोई डर नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब काम की बात आई तो कुछ कर सकता है वो लोग, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो मैं काम कर रहा हूँ तो वो इलीगल हो गया। तो इसकी वजह से मैं बोल लेता हूँ मैं काम भी नहीं करता हूँ, मैं यूएनएचसीआर से तनख्वाह खा कर रह रहा हूँ। मैं एक रिफ्यूजी हूँ, एज ए रिफ्यूजी वी कैन गेट 700 ringgit पर मंथ। तो जब मैं ये कह देता हूँ हाँ ठीक है चलो। और ये 700 ringgit आपने जो फिगर बनाई है ऐसी वैसी बनाई है, मतलब जी ऐसे ही बनाया था। अच्छा, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं। और और कुछ पुलिस वालों को ये भी पता है कि हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिलता है। जब मैं बोल देता हूँ कि मुझे तनख्वाह मिलता है तो वो फिर जवाब देता है कि तुम लोगों को तो तनख्वाह नहीं मिलता, तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो। तो मैंने कहा अगर ये जवाब दूँ तो ये कहते हो, ये वो जवाब दूँ तो ये कहते हो, तो इसका बेस्ट जवाब तो यही होगा ना कि मुझे तनख्वाह मिलता है। अगर काम कर रहा हूँ तो ये आप लोग कहते हो कि इलीगल है, अगर काम नहीं कर रहा हूँ तो हाउ कैन यू सर्वाइव योरसेल्फ, आप खाते कैसे हो, पीते कैसे हो, चलते कैसे हो। तो इसका बेस्ट आंसर ये हो गया ना कि मुझे यूएनएचसीआर से तनख्वाह मिलता है। even with the UNHCR refugee card that takes up to a few years to process, it does not grant them the right to education or employment. Worse still, there's a lack of awareness among the law enforcement and the common men about what pagungsi is. The general environment builds fear in the minds of some, and only fewer still have the resilience to build a narrative around it to keep on going. तो ये इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम है? बस यही जैसे कि पुलिस का प्रॉब्लम, अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो बहुत आपके मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि अगर पुलिस पकड़ लेगा कि आपको कभी पुलिस ने पकड़ा है? ये लगभग 100 बार। 100 बार? अब आई थिंक 100 बार से ज़्यादा हो गया मैं पुलिस से वो होता जा रहा हूँ। इतनी आसानी से कैसे पकड़ लेते हैं आपको? वो ऐसे पकड़ते नहीं है, जब हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वो पुलिस देख लेते हैं, जब देख लेते तो गाड़ी रुक के आके पूछता है। तो पूछने के बाद अगर उन लोगों को कुछ ऐसा लगा कि मैं कुछ इलीगल कर रहा हूँ या मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो वो लोग पैसे मांग सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो जेल जाने वालों में से नहीं है, क्योंकि कौन क्यों जाना चाहेगा जेल में। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो आप इलीगल हो गए हो। तो अगर पुलिस ये भी कर सकता है, आपको पुलिस स्टेशन में ले जाके आपको जेल भी कर सकता है, तो ये नहीं होना चाहते, इसलिए पैसे निकाल के दे देते हैं। वो लोग ब्रैफ लेते हैं जी, बहुत अवेयर हो के जाना पड़ता है। ये कभी कभी बस में भी उतर के चेक करता है। अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा हल्का हो गया, अभी थोड़ा अच्छा है। जैसे कि अगर आप यूएन कार्ड दिखाते हो तो बहुत कम लोगों को ये करता है कि पैसे दे दो, वो दे दो। लेकिन पहले तो ज़्यादा था, जब मैं 2012 में इधर एंट्री हुआ था तब तो ज़्यादा था। लेकिन तब मेरा लैंग्वेज स्किल भी इतना ठीक नहीं था, तो सबके पास यही प्रॉब्लम होता। जैसे कि आप नए आए हो तो कुछ नहीं मालूम आपको, तो पुलिस देख के डर जाते हो, क्योंकि हम लोग इलीगल है इधर। तो रिफ्यूजी भी रजिस्टर नहीं किया तो टोटली इलीगल हो गया, तो उसका बहुत प्रॉब्लम होता है। वो जो टाइम पीरियड होता है जब आप रेफ्यूजी नहीं हो और अप्लाई कर रहे हो, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गड़बड़। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले आप सही टाइमिंग, इसका नाम है सही टाइमिंग, इसको पूछा था कि कार्ड के बारे में तुम्हें अभी तक कार्ड पाए हो कि नहीं। और मैं यहाँ रह रहा हूँ 4 महीना हो गया, लेकिन 4 महीनों से मैं उसको एक बार घूमने के लिए जाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे कि KLCC में कहीं भी घूमने के लिए जाओ तनख्वाह पाने के बाद, तो वो जाने के लिए रेडी नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास कार्ड नहीं। वो कहता है जब मैं UNHCR कार्ड पाऊँगा तब जाके मैं कुछ जगह में जाके घूमूँगा। तो अभी यहाँ से बहुत पास है, बहुत नज़दीक है। एज ए फेमस थिंग KLCC,
यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो नहीं देखा अभी तक, क्योंकि वहाँ जाने के लिए डरते हैं। अच्छा, और इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि इतनी डर है उनकी डर जो ये बहुत से लोगों के साथ हुआ। जैसे कि आप जा रहे हो तो आपके पास पैसा नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, तो पुलिस ने पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता है, तो वहाँ से जेल कर देता है। As we move our focus to Hazara refugees in Bogor, Indonesia, we will hear through Meena Asadi about her experiences living in Pakistan and Afghanistan and the reasoning behind coming to Bogor to seek shelter. Then, we will move on to the current experiences of Heather, who will describe in detail what it is like to live day on day in Indonesia. What prompted you to go back to Afghanistan? Pakistan से क्यों गए? पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस्तान पहले तो वहाँ के हालात भी बहुत ख़राब थे। जो शिया लोग थे, हज़ारा लोग थे, उन लोगों को अभी तक मारते हैं। तो इस वजह से मैं रास्ते में आना जाना करता था। मतलब जो मैं अपने काम के लिए, मतलब मैं ऑफिस जाती थी, फिर आती थी, रास्ते में भी मुझे प्रॉब्लम हुआ था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहे थे। तो जब आप इंटरनेशनल प्लेयर हो तो किसी और के पासपोर्ट बना के मेरी तस्वीर को उसके ऊपर लगाती थी। किसी और के नाम मैं जाती थी, मतलब मेरा नाम मीना है, किसी और के नाम मतलब जोहरा है, उसको मतलब मेरा तस्वीर उस पासपोर्ट पर लगा के फिर कहते थे तुम जाके इंटरनेशनल खेलो। तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया कि एक दिन में पकड़ ना जाओ। इन लोगों के लिए मतलब मीडिया लाते थे, मगर ये लोग फिर मेरा पासपोर्ट नहीं बनाते थे। उसी तरह मतलब क्या कहूँ, ये तो यूजिंग कहते हैं इसको, यूज़ करते थे लेकिन पासपोर्ट नहीं बनाते थे। जब मैं कोई और मतलब कोई ऑफिस जाती थी, इस तरफ उस तरफ जाती थी, तो लोग फिर मुझे बहुत तंग करते थे। ऑफिस में तंग करते थे, ऑफिस के लोग तंग करते थे। क्या मतलब तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? मैं कहती थी कि भाई मेरा जो शिनाख्त कार्ड है और जो पासपोर्ट है वो ब्लॉक हुआ है, मैं क्या करूँ इस तरह से। फिर कहते अच्छा तुम अपना नंबर दो, ये करो वो करो। फिर उसके बाद जब मैं घर जाती इतनी मैसेजें मुझे आ रही, इतनी गंदी बातें, फिर मुझे बिल्कुल छोड़ना पड़ा पाकिस्तान। मैंने कहा ये लोग जब मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और हर दफ़ा जब मैं इंटरनेशनल खेलती हूँ, इन लोगों के लिए मेडल जीत कर लाती हूँ, तो ये लोग मेरे लिए एक पासपोर्ट नहीं बना सकते, तो मैं क्यों खेलूँ इन लोगों के लिए। फिर मैंने पाकिस्तान छोड़कर अफ़गानिस्तान आई। उसके बाद मुझे फ़ोन किया कि तू वहाँ जाओ, वापसी हम लोग बनाते हैं। ये मैं कहा नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा धोखा खाया, अभी बस मैं नहीं आ रही। और जब आप वापस अफगानिस्तान गए तो आप किन के साथ रह रहे थे? मेरे 1-2-3 दोस्त थे वहाँ पे। तो पहले उन लोगों के पास गए, फिर उसके बाद मैंने एक जगह लिया क्लब के लिए, और उस क्लब को मैंने ढूंढ कर एक जगह फाइन लिया, फिर उसको किराए में ले लिया और उसको सफाई किया। और 3-4 दिन तक मैंने सफाई किया और उस क्लब को बनाया तो लड़कियों के लिए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया क्लब। बस लड़कियों के लिए? मतलब लड़के भी थे, हाँ दोनों मिक्स लड़की, मतलब मैं स्पेशल लड़कियों के लिए, लेकिन बाद में लड़कों भी आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग मिक्स ट्रेनिंग करो। अफ़गानिस्तान में मिक्स ट्रेनिंग करना बड़ी बात है, मतलब एक बुरी बात है। लड़के और लड़की एक साथ ट्रेनिंग करें और उसके सर में दुपट्टा भी ना हो तो बहुत बुरी बात है।
तो उस वजह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बातें बनाया और बहुत गंदी बातें बनाया। और मॉस्क में जो हम लोगों का एक मुल्ला होता है, मस्जिद होता है, जो लोग प्रेयरिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बातें बनाया कि इसने क्रिश्चियन के लिए वो कर रहे तबलीगात कर रहे हैं कि ये खिलाफ नहीं है, ये दरअसल खिलाफ के नाम से ये यूज़ कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग आते हैं, लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। फिर बहुत ही बड़ी बातें बनाए मेरे ऊपर। फिर रात को जब मैं कॉलेज से आते थे तो मेरे कितने बार मेरे रास्ते को पकड़ा और मुझे मार दिया। मैंने बहुत ही डिफेंस किया, लेकिन लोग ज़्यादा थे, इसलिए मैंने फिर अशरफ ने कहा कि हमें छोड़ना पड़ेगा ये जगह। एक दिन अगर तुम्हें मार दे फिर क्या होगा। जब आपने इंटरेस्टेड फाइंड आउट कि जब आपने कराटे स्कूल शुरू किया अफगानिस्तान में एंड यू ट्राइंग टू मेक इट पॉपुलर among the girls there कि लड़कियां वहाँ पर आकर कराटे शुरू करें और सीखें, so they must be not willing कि हम लोग क्यों कराटे सीखें और मना करते होंगे उनके मम्मी पापा की कराटे मत सीखो एक्सेट्रा। ऐसा कुछ फेस किया था? Was it popular to understand? हाँ, बहुत। जब लड़कियाँ आती थी मेरे सामने के ज़्यादातर अम्मियाँ कहते हैं कि कराटे लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा अगर अच्छी नहीं होती थी तो मैं शुरू नहीं करती कराटे और मैं नहीं सीखती। तो मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा समझाती थी कि नहीं, ये बात नहीं है कि मतलब कराटे अच्छी नहीं है। फिर उसी के बाद वो लोग चुप के आते थे फैमिली से। हाँ, some of them but not all of them उसी तरह चुप के आते थे, क्लब ट्रेनिंग करते थे, फिर उसी तरह जाते थे। और उन्हें आपका कराटे स्कूल इतना पसंद क्यों आया अफगानिस्तान में? क्योंकि मैं एक नया चीज़ मतलब दिखाती थी कि मतलब अफगानिस्तान में भी क्या इम्प्रूव करे, खेले। तो उस वजह से मैंने कहा अगर कोई सख्ती भी मेरे सामने आ गया तो मैं नहीं छोड़ती। लेकिन 4 साल तक मैंने बहुत ही मजबूती से पकड़ी थी ये क्लब के लड़कियां भी इम्प्रूव करें खेल में। तो मैंने जो मैं चाहती थी मैंने किया उसको लड़कियों के लिए। अभी लड़कियां हैं जो खेल रही है, अभी लड़कियां हैं जो साइकिलिंग कर रहे हैं, कराटे कर रहे हैं, एवरी खेल वो अब करते हैं। क्योंकि शुरुआत मैंने किया अफगानिस्तान में, तो शुरुआत मैंने किया और बातें भी मेरे ऊपर ज़्यादा हुआ। लेकिन अभी सब लड़कियां जो खेलते हैं और हाँ, मैंने उन लोगों के लिए मतलब एक रास्ता खोला। एंड फाइनली जब आपने 4 साल तक ये किया तो ऐसे क्या हुआ अफगानिस्तान में जब आप अशरफ के साथ अपने बेटी और अपने सास ससुर के साथ ये काम किया? तो मुझे बहुत उससे पहले 4 साल में भी इसी तरह के बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम को मतलब फेस करती थी। लेकिन फिर भी बहुत ही मतलब मेरे लिए घूमना फिरना बहुत ही मुश्किल था। तो जब आखिर साल जब बहुत ज़्यादा हुआ था, मेरे डिफ़िकल्टीज़ बहुत ही ज़्यादा हुआ था, तो जैसे कि मेरे सामने कोई आता था मुझे मतलब मारता था। और इसी तरह के मतलब मैंने कहा, अशरफ ने भी कहा कि एक दिन मतलब तुम्हें ना मारे, मतलब अगर तो जान है अगर जहान है तुम प्लीज़ हम लोग जाते हैं। अगर कोई दिन आपको कोई नाइफ से मार दे मतलब ये तो बहुत बुरी बात होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सारे चीज़ हमारा जो जितने भी चीज़ थे घर थे उसको फ़रोख्त किया, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। आफ्टर अफगानिस्तान आप लोग कहाँ गए थे और कभी अबू और अपनी अम्मी को छोड़कर यूके में, तो क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी आपके बीच आपके अबू की अम्मी के साथ
हाँ, अम्मी ने कितने बार मुझे कहा कि तुम अपना जान मतलब सेव करके कोई जगह जाओ, मतलब हमारा कोई परवाह ना करो, तुम जाओ यहाँ से, कोई तुम्हें मार ना दे। तो क्योंकि कितने बार मेरे सामने मतलब मेरा रास्ता पकड़ गया, मुझे मार दिया, मेरी आंखें बहुत ही वो लाल हुए थे, मेरे फेस बिल्कुल एक मतलब लाल हुए थे, काले हुए थे। तो उस वजह से मैं जो अम्मी मुझे देखती थी तो उसको बहुत ही परेशानी होती थी। तुम देखो अपनी आंखें किस तरह हो। कितने बार मैंने पुलिस में गए, शिकायत दी कि मुझे इस तरह मारते हैं, ये पता नहीं कौन है। तो वो लोग कहते थे हम लोग कहाँ से ढूंढें, ये लोग कौन है। तो उसके बाद मैंने कहा कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जो मेरे सामने आते हैं मतलब उसके फेस बिल्कुल बंद है, मुझे पता नहीं चलता कि ये कौन है। तो फिर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मतलब उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं आ जाऊँ यहाँ पे। पहले मैंने कहा कि मैं इंडिया चली जाऊँ। कितनी बार भी मैं इंडिया गई उसी तरह मतलब खेलने के लिए, मतलब डॉक्टर के पास गए थे। तो मैंने कहा मैं इंडिया चली जाऊँ। फिर इंडिया अफगानिस्तान में बहुत ही नज़दीक है। मैंने कहा अगर कोई मुझे ढूंढ गया तो यहाँ से भी बहुत आसान होगा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँ ताजिकिस्तान में। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं वहाँ पे चली जाऊँ। फिर यहाँ पे मेरे एक दोस्त थे तो उसने कहा तुम आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। मैं बिल्कुल ये हो रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, अभी कहाँ जाऊँ। अगर पाकिस्तान में जाऊँ तो वो तो ख़त्म हुआ पाकिस्तान। इंडिया में जाओ या मतलब ताजिकिस्तान में जाओ, कहाँ पे जाओ। फिर इसी तरह मैंने अपने दोस्त के साथ, मेरे एक दोस्त यहाँ पे रहते हैं, मतलब यहाँ पे जो हम है यहाँ पे नहीं है, और कोई और सिटी में है, इंडोनेशिया में है, मतलब कोई और सिटी में। उसने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, मेरे ख्याल में यहाँ सेफ जगह है। उसके बाद मैंने कहा सही है, हाँ तो हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पर आने के लिए what job did you take? कैसे आए? यहाँ पे हम लोगों ने वीज़ा लिया। तो यहाँ पे पहले इंडिया में आ गए, 4 दिन तक इंडिया में थे। फिर उसके बाद आ गए मलेशिया, फिर मलेशिया से आ गए। अच्छा, वीज़ा के थ्रू? वीज़ा ले थे यहाँ से। जी जी। और फिर आफ्टर यहाँ पर आके अपनी asylum status? हाँ, asylum seeker। हाँ, हमने UN में गए और अपने नाम लिखा और हम लोगों ने अपना जो डिफ़िकल्टीज़ थे वो बताया। तो फिर उसके बाद हम लोग एंड आप लोग अभी यहाँ पर हैं एंड 2-3 साल से यहाँ पर हैं? नहीं, मतलब 3 साल हो रहे हैं। 3 साल हो गए। एंड यू फील एट होम हियर? यहाँ पर आपको घर जैसे महसूस होता है? नहीं, क्यों? मतलब क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है तो हमारा हम लोग मतलब हमेशा इस सोच में है कि हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो हमारा आगे क्या होगा। और क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, मतलब टाइम इस तरह वेस्ट होता है कि मुझे कुछ करना भी है और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं जल्दी यहाँ से अगर हो जाए कोई और मतलब यूरोप कंट्री में या कोई और जगह जाऊँ तो अपना ये जो खेल है मेरा, ये जो मतलब कराटे है, मैं इसको बिल्कुल सही तरीके से दोबारा मतलब स्टार्ट करूँ। मतलब आई वांट टू बी इंटरनेशनल प्लेयर। तो मेरा टाइम यहाँ पे इसलिए वेस्ट हो रहा है क्योंकि मैं कोई जगह नहीं मतलब जा सकती, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। जैसे एक परिंदे को मतलब एक केज में रहना पड़ेगा, मुझे भी अभी उसी तरह है, मैं कोई जगह नहीं रह सकती। मतलब हमेशा इस सोच में हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और जो मेरे सहेलियाँ हैं मतलब जो मेरे फ्रेंड हैं वो लोग पाकिस्तान में हैं, वो लोग अभी मतलब कोई भी जगह मतलब जा सकते हैं या तो मैं क्यों नहीं। मतलब मैं कोशिश ये करती काश हो जाए कि जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ और जाके जल्दी कराटे दोबारा स्टार्ट करूँ कि मेरा जो उम्र है मतलब जो अभी तो मैं 26 हूँ, मैं बूढ़े न जाऊँ, जल्दी मैं मतलब शुरू करूँ मेरा अपना काम। या
अली हैदर है। तो मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं और मेरी वाइफ और 4 बच्चे यहाँ इंडोनेशिया में हैं एज ए रेफ्यूजी। तो हम लोग हज़ारा बरादरी के मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, हज़ारा बरादरी के, और शिया हैं हम लोग, कोयटा से हैं। तो मतलब यहाँ पे तकरीबन हम लोग अभी 3 साल होने वाला है इंडोनेशिया में। तो ये स्कूल जो पहले नहीं थी यहाँ पे हम लोग के एरिया में, तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत होती थी, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए। उन लोग का एजुकेशन टाइम सब वेस्ट हो रहे थे। तो बच्चे जो हैं अपना गलियों में खेलते थे। तो इवन हम लोग खुद इंडोनेशियंस ये लोग डिस्टर्ब हो जाते थे ना, मतलब अभी डेली आप एक गली में खेल रहे हो तो वहाँ के नेबर्स ही वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस लोग ने बोला कि भाई हम लोग अभी स्कूल जो है दूसरी है जगह है, दूर है वो लोग, तो वहाँ पे मतलब जाने आने के लिए हम लोग को दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे थे, तो हम लोग ने सोचा कि एक स्कूल खोल लें यहाँ पे। मतलब स्कूल तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि स्कूल वर्ड हम लोग को अलाउड नहीं है यूज़ करने के लिए। तो सेंटर हम लोग मतलब नाम रखें इसका। तो एज अ सेंटर यहाँ पे चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग के पास जो है अफ़गानी, पाकिस्तानी, अरबी, मतलब जो इराक़ के जो लोग हैं ये लोग पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब अभी हमारे बच्चे भी कुछ एजुकेशन ले सकते हैं, बाकी के बच्चों भी एजुकेशन ले सकते हैं। अभी उन लोग के पेरेंट्स भी खुश है कि हाँ स्कूल यहाँ पे स्कूल कॉलेज लोगों ने, मतलब अभी जो नॉर्मल लाइफ है तो चल रहा है, लेकिन आगे कुछ जाके वो नहीं हो रहा है हासिल। क्योंकि अभी स्कूल जो हम लोग ने खोला है कि चलो अभी प्रेजेंट, मतलब ऐसा प्रेजेंट हम लोग सही कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब सोच रहे हैं कि अभी कितने साल हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ पता नहीं होता है। फिर मैं मेरे 2 दोस्त और सोचे कि भाई ये सेंटर खोल लेते हैं यहाँ पे, तो बच्चों का भी भलाई होगा, हम लोग का भी अच्छा होगा, जितने भी जो टीनेजर्स हैं जो बड़े हैं, मतलब कुछ एजुकेशन हासिल होगा, ताकि अपना टाइम जो है इंडोनेशिया में ये लोग वेस्ट नहीं कर सकें। कुछ पढ़े लोग, कल को अगर ये शायद अमेरिका चले जाएं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे मतलब मेन चीज़ ये है कि इंग्लिश आनी चाहिए आप लोग को। तो ये चारों कंट्रीज़ में इंग्लिश चलती है। तो ये लोग मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके लोग चले जाएं। मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं सीखा इस लोगों ने, जो बंदे यहाँ से जो गए, जो नहीं सीखा उस लोगों ने, तो भी वो लोग पछता रहे हैं। बोलते मैंने अपना टाइम, इतना टाइम इंडोनेशिया में वेस्ट किया, पढ़ाई नहीं की, अभी वो लोग पछता रहे हैं। उन लोगों को सही काम भी नहीं मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम मिले, मतलब वही छोटी मोटी वाली काम, मतलब एज अ लेबर मिल सकता है। अगर आप एजुकेटेड हो, कम से कम ना कुछ तो अच्छे काम भी मिल सकते हैं उन लोग को। तो इसलिए हम लोग का ये टारगेट था कि भाई स्कूल खोलें, मतलब स्कूल नहीं सेंटर खोलें हम लोग। तो अभी हमारे सेंटर में मतलब एजुकेशन भी हो रही है, बच्चों को हम लोग कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं, गिटार क्लासेस भी है हम लोग के स्कूल में, और अपना भाषा क्लासेस भी हो रहा है। तो मतलब एक सही सेटअप बन गई है। Heather felt a strong need to step up in his community to provide for a better future for the next generation. Together with his friends, they rallied the community to come together to provide for a structured learning environment. This community around him helps time go by faster, relieving the stress of being in a limbo. The people around him help cope with the loss of what was left behind, manage the uncertainty of the present, and hope for a better future that only has an approximate time of arrival with a large standard deviation. बता सकते हैं टाइम गुजारना क्या होता है? यार मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन हम लोग को करना पड़ता है यार, क्योंकि अगर टाइम नहीं पास करें हम लोग पागल हो जाएंगे। तो अभी घर में बैठ के हम लोग करें तो क्या करें, मतलब हस्बैंड वाइफ कितने बात करें यार। मतलब अभी अपना कंट्री में होता था तो हस्बैंड ड्यूटी में जाता था, फिर घर पे आ जाता था, फिर ड्यूटी को बोलता था यार आज जॉब में ऐसा हुआ, जॉब में ऐसा, बॉस ने ऐसा बोला, ये हो गया, ये कलीग ने ये किया, मतलब एक कुछ ना कुछ टॉपिक होता है। अभी 24 घंटा हम लोग घर में होते हैं, मतलब बात करें तो क्या बात करें, किस चीज़ के बारे में बात करें। तो ये ज़्यादा होता है कि मतलब जो लेडीज़ होती हैं मतलब सहेलियों के पास चली जाती है, थोड़ी चाय माय बना के तो उधर ही बैठे गप्पे लगाते हैं, मतलब तो उस लोगों को टाइम पास हो जाते हैं। तो ऐसे ही जेंट्स का हो गया तो यार दोस्त के घर में चले जाते हैं, 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए उधर ही बैठ के चाय माय पीते हैं, फिर वापस घर आते हैं। तो मतलब ये छोटी छोटी खुशियाँ हम लोग को मतलब ज़िंदा रख रहा है अभी तक। अगर ये सब चीज़ नहीं हो, घर में अकेले बैठो, मतलब स्ट्रेस लो, बीमार हो जाओ, अगर मैं बीमार हो गया फिर इधर दूसरा कोई बंदा नहीं है कि आके घर का काम कर ले या सौदा लेके आए,
तो इसलिए मतलब खुद इंसान अपने आप को मतलब देखना पड़ता है कि भाई कोशिश करें कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले, जितना हो सकता है मतलब अपने आप को खुश रखें ताकि वक्त सही अच्छा गुजरे। खुशी कैसे आती है यार खुशियाँ? खुशी अभी देखो मिसाल के तौर पे अभी रमज़ान जो गुजर गए, तो रमज़ानों में क्या होता था, फिर इफ्तारी का टाइम होता था, फिर इफ्तारी थोड़े बहुत बना दिए हम लोग ने, ये मतलब रिलेटिव मतलब जो नेबर्स के घर पे होते हैं तो वहाँ पे बेचते हैं, कभी उधर से इधर आता है, तो कभी दोस्त के घर चले गए, तो कभी कुछ ओकेशंस होते हैं जैसे ईद गदीर हो गया, ये हो गया, तो केक बनाते हैं हम लोग, तो ये मतलब छोटी खुशियाँ मिल जाते हैं हम लोग को, खुश रहते हैं। तो कभी कभी बैठ के हम लोग गेम्स खेलते हैं दोस्त के घर के साथ, उन लोग के घर पे टीवी है, अपना प्ले स्टेशन है, तो गेम खेल लेते हैं। तो मुझे खुद भी पर्सनली अभी तक मेरा एज भी काफ़ी हो गया लेकिन अभी तक मुझे गेम्स पसंद है, तो कभी कभी बैठ के कभी कभी बोर हो गया तो गेम्स खेलता हूँ, वरना कुछ अपना यूट्यूब में डॉक्यूमेंट्री देखता रहता हूँ या कुछ टीवी में कुछ प्रोग्राम देखता रहता हूँ। थोड़ा सा बताइए, जो आप आपने बताया कि आपको स्ट्रेस होता है एंड आप फ़ोन खेलते हैं एटसेट्रा, उससे गायब हो जाता है। कैन यू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट जब आप रात को सोने जाते हैं तो क्या दिमाग में आता है? यार देखो मतलब ये रात का नींद ही ऐसी चीज़ है कि भाई रात को जब सोते हैं उस दिन पूरा दिन जो आपके साथ हुआ है वो रात को मतलब माइंड में वो रिपीट होता जाता है ना, तो भाई ये वो तो मिसाल के तौर पर कोई टेंशन वाली बात है ये वो, तो बाज़ वक्त क्या होता है कि नींद ही उड़ा देते हैं बंदे का ना, फुल गहरी नींद में आप जब अचानक से ऐसी कुछ सोच आ जाए तो आपका नींद ही उड़ा देता है। तो यार यही कोशिश करते हैं, मैं खुद यही कोशिश करता हूँ कि भाई मतलब कुछ टीवी देख लूँ, कुछ ये कर लूँ, मतलब ना मेरा माइंड ही हो इतना हद तक मैं वो करता हूँ कि भाई मैं फुल ऐसा मतलब वो हो जाता हूँ ना, अपना क्या नाम है अपना नींद बहुत शदीद आ जा रहा है, मतलब आंख बंद करूँ कि सो जाऊँ, ऐसा कोशिश करता हूँ कि ऐसा हो जाऊँ, फिर जाके सो जाऊँ, फिर मुझे गहरी नींद आ जाता है, फिर पता नहीं चलता है मुझे कि ख्वाब में क्या देखा है, ये क्या हो गया। क्योंकि अगर मैं जब थोड़ी बहुत अगर नींद आ रही, अगर मैं सोने के लिए जाऊँ तो ये टेंशनें इंसान को सोने ही नहीं देते हैं। मतलब यार किस माहौल में थे, कहाँ थे हम लोग, कहाँ आ गए और क्या कर रहे हैं, कब तक हैं यहाँ पे, कब जाओगे यहाँ से यार, मतलब ना अपना मुल्क है, ना कुछ कर सकते हो, ना काम कर सकते हो, हाथ बंधे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब कैसी लाइफ है समझ में नहीं आ रहा यार, बहुत ही सख्त गुजर रहा है, बहुत ही सख्त गुजर रहा है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई मतलब अब जितना भी वक्त है सही गुजरे हम लोग का ना, तो यही तो भाई ये चाहता हूँ कि भाई जल्द से जल्द यहाँ से जाए, अपने मंजिल पे पहुँचे, फिर से वही अपना मैं रूटीन काम करना, ये वो बच्चों का स्कूल एजुकेशन, तो बस यार यही मतलब सब टेंशन है, मतलब इंसान को वो कर लेते हैं, बहुत सोचने में वो हो जाता है। यार ऑफ कोर्स यार हर कोई यही चाहता है कि भाई अपना मुल्क वापस चले जाए, तो क्या नाम है अपना अगर पाकिस्तान का हालात सही हो गए तो ऑफ कोर्स यार लाजमी है यार जाएँ, अपना लैंड है, अपना मुल्क है, अपना सरजमीन है वहाँ पे, तो लाजमी आप पहुँच जाना चाहते हैं। यार कुछ भी हो जाए यार अपना सरजमीन होता है यार, और चाहे मैं दुबई में पैदा हूँ या कुछ भी हूँ लेकिन पाकिस्तान होता है यार, मतलब एक बात है अपना मुल्क है यार, मतलब अपने मुल्क की जो मिट्टी है उसकी खुशबू ना अलग सा होता है, ऐसी खुशबू अलग ऐसा मिट्टी आपको दुनिया के कई कोने में भी जाओगे नहीं मिलेगी, अपने देश की मिट्टी यार। देश में सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? यार बहुत सी चीज़ें हैं यार, मतलब उधर का रहने का, उधर की गलियाँ, उधर का मतलब जो आज़ान की जो आवाज़ आते हैं, मतलब इधर भी तो आते हैं लेकिन उधर का एक दूसरा फीलिंग होता है, तो दुकान में जाते हैं मतलब जो परचेस करते हैं, अपना ज़ुबान बोलने वाला, अपना उर्दू स्पीकिंग वाला बंदा होता है या हज़ारा मतलब फारसी स्पीकिंग करने वाला होता है, तो मतलब बहुत खुशी हो जाता है हम लोग को अपने मुल्क में। इधर आके मतलब देख रहे हैं सब दूसरे ज़ुबान में, ज़ुबान इन लोग का सही नहीं आता हम लोग को, ना इन लोग को अपना ज़ुबान आता है, तो बहुत ही मतलब मुश्किलें पेश आते हैं। कैसे यार पाकिस्तान में तो इसके ये हालात की वजह से हम लोग ने छोड़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं अकेला होता था वाइफ के साथ मैं कभी पाकिस्तान छोड़ के नहीं आता था,
ये बच्चों का फ्यूचर ये वो। मैंने बोला यार इन लोग का ज़िंदगी ख़राब नहीं हो, ना सही पढ़ाई होता है ना कुछ होता है, कल को ये लोग बड़ा हो जाएंगे फिर काम का चक्कर होता है। फिर एक तो हम लोग का फेस दूर से पता चलता है कि भाई हज़ार है शिया है, लोग मारते हैं, लोग टारगेट करते हैं। तो भाई जब मुझे मैं खुद सेफ नहीं हूँ, अपने बच्चों को क्यों उधर मैं वो पार करूँ, क्यों उन लोग का ज़िंदगी उधर वेस्ट करूँ। इससे अच्छा कि भाई इधर आ जाऊँ, इधर से मैं थर्ड कंट्री चला जाऊँ ताकि मेरे बच्चों का फ्यूचर सही हो जाए, ताकि इन लोग को अच्छा मुस्तकबिल मिले यार, अपना लाइफ ये लोग सही पहचाने। पाकिस्तान में रह के क्या करेगा यार, पाकिस्तान का अगर हालात सही हो, यकीन कर यार कोई भी जितने भी पाकिस्तानी जो आउटसाइड है सब वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। कैसे हो यार पाकिस्तान में यार सबसे मेन जो कीमती चीज़ है माँ बाप, सही है। तो मतलब पीछे छोड़ा उन लोग को अपना रिलेटिव्स फैमिली वगैरह, तो बहुत ही मुश्किलात पेश आया यार हम लोग को, मतलब बहुत से ज़्यादा। जब मैं यहाँ पे आया तो उसके कुछ महीना के बाद मेरे फादर का डेथ हुआ, तो अपने फादर के फ्यूनरल पे मैं नहीं जा सका। मतलब ये बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हो है यार फेस किया मैंने यार, क्योंकि बाप जो होता है मतलब एक पहाड़ का जैसा होता है, तुम्हारा साथ खड़ा होता है। गुड बाय। तो जब बाप नहीं होता सर पे यार बंदा इंसान यतीम हो जाता है यार। पागल हो गया था, चीख रहा था पागलों की तरह घर में, पुराने घर में था, मैं चीख रहा था। सुबह सवेरा मेरे सिस्टर का कॉल आई तो बोलते फादर कैसा हुआ, तो मैं पागलों की तरह चीख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे चीख से रोने से बच्चे उठ गए, आपकी भाभी उठ गई, तो बोलता क्या हुआ, तो ये बोला, तो बच्चे भी उदास, सब उदास, घर का माहौल ही बिल्कुल ख़राब हो गया। तो उस टाइम ऐसा दिल कर रहा था कि भाई सब चीज़ छोड़ के वापस चला जाऊँ। फिर मैं बोला यार जाके क्या कर सकता हूँ, अपना बाप को तो वापस नहीं ला सकता। तो मतलब बहुत सी चीज़ें यार, अभी माँ को देखता हूँ, माँ अकेली हो गई, वहाँ पे सिस्टर्स हैं ये वो, क्योंकि घर का बड़ा मैं ही था, तो मैं ही जब बनी हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है।